Let us start the class. So next topic we have asymptotic lines. Asymptotic lines. Asymptotic lines on the surface. So definition. Firstly, a direction. A direction, suppose I am saying by DUI. Direction we represent by DU. A direction DUI, this is called asymptotic. Asymptotic if second fundamental form this equal to 0. Bij DUI DUJ. If this equal to 0, we say that the line is asymptotic line. Okay. So any direction for which this 0. इसे सपोज क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे, इसे मैं यहाँ पे 7 8 तक हुआ था लास्ट लेक्चर, इसे 9 कर देते हैं, उसी कंटिन्यूशन में चल रहा है. एंड this direction is called asymptotic direction, and a curve whose direction at every point satisfy 9. Satisfies 9. This is called the asymptotic curve. It's called the asymptotic line. Asymptotic line. Okay. So you have a curve on a surface, of course. Some curve is there on the surface, so that at every point, it has this is equal to 0. So that curve is called asymptotic line. The differential equation of asymptotic line is the differential equation of the asymptotic line is, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले हम कैसे, इसे सॉल्व कर लो. Bij DUy DUj. So I am putting ij's value. So bu1 du1 square plus twice b12 du1 du2 plus b22 du2 whole square is equal to 0. इसे नंबर 10 कर दें. So it is the differential equation. du2 से डिवाइड कर लें तो du1 by du2 whole square बन जाएगा. Also one more, I can find this. I know that dn over dr, dn dot dr, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉल्व कर सकते हैं. dn dot dr is what? dn is ni dui, है ना. dn is what? Differential of n. n1 du1 plus n2 du2. Similarly, differential of r I can write rj duj. So how much it will become? I can write ni dot rj dui duj. And what is ni dot rj? याद है किसी को? ni dot rj बताइए. bij के टर्म में एक फॉर्मूला था, माइनस bij. ओके. and dui duj. So dn dot dr is coming is this.
So for asymptotic line, your second, this is minus, which is 0 for asymptotic line. So hence for asymptotic lines, you have dn dot dr is equal to 0. ठीक, इसको I will be using for solving, for finding equation of line. It is equation number suppose 11. ठीक है, तो dn dot dr is equal to 0 for asymptotic line. यहाँ तक क्लियर है? बताइए क्यों स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, बशर आलम कहाँ है? बशर आलम, यस सर। सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो asymptotic लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? सेकंड फंडामेंटल शुड बी 0, और इसको हम dn over dn dot dr लिख सकते हैं, तो दिस शुड बी 0. दिस इज द condition actually. Now we have some theorems for asymptotic lines. Theorem number 1, the normal curvature kn for asymptotic lines is 0. कैसे भाई? एक लाइन का प्रूफ है, नॉर्मल कर्वेचर kn for asymptotic lines is 0. नॉर्मल कर्वेचर जो हमने पढ़ा था kn, किसी भी कर्व का यू हैव टू कर्वेचर, ज्योडेसिक कर्वेचर एंड नॉर्मल कर्वेचर. नॉर्मल कर्वेचर इसका 0 होगा. क्यों? एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद है kn का? नहीं याद किसी को? सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म. Bij फॉर्मूला निकाला था हमने kn का, अगर याद नहीं है तो रिकॉल करें. Buij dui duj अपॉन Gij dui duj, है ना? इससे बहुत सारे फॉर्मूले बार ड्राइव किए इसमें चेंजेस करके. एंड बिकॉज एसिम्प्टोटिक लाइन सेकंड इज 0, so this is 0. So kn is 0. नॉर्मल कर्वेचर के लिए kn for asymptotic line is 0. Theorem 2, parametric curves are asymptotic lines if and only if b11 is equal to 0 is equal to b2. If and only if condition. Your parametric curves are asymptotic lines if and only if b11 0 b22 0. अगर ऐसा हो गया तो आपकी जो पैरामीट्रिक कर्व्स एसिम्प्टोटिक लाइंस होंगे एंड एसिम्प्टोटिक लाइंस पैरामीट्रिक कर्व्स होंगे. इसका प्रूफ देखिए. So firstly I am considering, suppose that this is 0. Let b11 is equal to 0 is equal to b22. Then from 10 कौन सी जो क्वेश्चन हमने एक्सपेंड करके लिखी है. अब अगर b11 b22 0 है तो व्हाट लेफ्ट? यू हैव ओनली दिस मिडिल टर्म, है ना? देन फ्रॉम 10 we have b12 du1 du2 is equal to 0. And this implies that du1 du2 is equal to 0 na? b12 need not be 0. And this is the equation of parametric curves. This is the equation of parametric curves. du1 du2 0, either du1 0 or du2 0. So ठीक है, which are
पैरामीट्रिक कर्व। Conversely, if du1 is equal, conversely I am saying your what, these are parametric curves, है ना, I will show this। तो अगर पैरामीट्रिक कर्व से तो क्या होगा, if du1 0 and du2 0, if asymptotic lines are parametric curves, तो du1 0 होगा u1 कर्व के लिए, u2 कर्व के लिए du1 0, u1 कर्व के लिए du2 0, है ना। then what will happen, so for du1 is 0, equation 10 implies that 10 equation वही जिससे मैंने ये लिखा था एक्सप्लेन करके। अब du1 0 देखिए, तो this term is 0 and this term is 0, you have b22 du2 square is 0, है ना, but du2 is not 0, है ना, for u1 कर्व du1 0 ले रहे हैं हम u2 कर्व, तो du2 is not 0, this implies that b22 is 0, and for du2 is equal to 0, यानी कि for u1 कर्व 10 implies that b11 du1 whole square is equal to, this implies that b11 is equal, so for parametric curves these two equal to 0। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ था इसका। नेक्स्ट थ्योरम 3, either the asymptotic line is a straight line, or its osculating plane OP is the tangent plane to the surface, okay, either the asymptotic line is a straight line or its OP is the tangent to the surface। या तो asymptotic line क्या होंगी, सब straight lines होंगी, या फिर इसका जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा वो टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस होगा। ठीक है, मीन्स या तो आपके पास अगर एसिम्प्टोटिक लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइंस आ रही होंगी, या अगर कोई कर्व इस तरीके से है सरफेस पे, तो जो इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन आएगा आपके पास, ये टेंजेंट है सपोज, ये नॉर्मल है, ये इधर नॉर्मल ले, कहीं भी इधर ले ले नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा इसको कंटेन करता हुआ वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ये टेंजेंट टू द सरफेस होगा। अगर हम एक प्लेन बनाइए तो ये टेंजेंट टू द सरफेस होगा, यानी कि जो नॉर्मल होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, कर सकते हैं। तो ईदर टू थिंग्स आर पॉसिबल, ये शो करना है। तो इस सब दीज ऑल आर वेरी स्मॉल प्रूफ्स, वी आर जस्ट यूजिंग द well known concepts। so for asymptotic line, so I will consider that line is asymptotic and I will show only these two cases are possible। so for the asymptotic lines, we have kn is equal to, अगर मैं इसका kn निकालू, नॉर्मल कर्वेचर है ना, kn k डॉट n, ये कितना है, 0 है ना, अभी हमने प्रूफ किया है थ्योरम 1 में, नॉर्मल कर्वेचर kn इज 0, kn इज 0, kn मीन्स k इज k डॉट n, k आपका कर्वेचर वेक्टर है एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ये 0 है। और k डॉट n को क्या लिख सकता हूँ मैं, k की वैल्यू क्या थी, कप्पा n ना, k क्या था आपका कर्वेचर t डैश, कप्पा n डॉट n इज इक्वल टू 0।
इसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे टू केस बने, इधर कप्पा जीरो है तो क्या हुआ, कर्वेचर जीरो मीन्स Straight line. इट इज अ Straight स्ट्रेट line. लाइन, है ना। इससे जो केस बनेंगे आपके, इधर दिस जीरो, अगर ये जीरो है तो स्ट्रेट लाइन, इधर दिस जीरो और दिस डॉट जीरो, और n dot n is zero. This is your n normal to the surface. This zero. अब n dot n zero means what? तो एक केस तो हो गया, it's a straight line. Now n dot n zero means what? The principal normal lies in the tangent plane of the principal n जो है वो n के perpendicular है ना। ये जो n है, surface to the n is normal to this n, principal normal. This implies that the principal normal vector n lies in the tangent plane of the surface. Tangent plane of the surface. है ना, क्योंकि कैपिटल एन से परपेंडिकुलर होगा, तो अगर कैपिटल एन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके टेंजेंट प्लेन पे लाई करेगा। ओके, एंड टी ऑलरेडी होती है टेंजेंट प्लेन, सो डज टी। So that means what? Hence, the osculating plane. Osculating plane क्या होता है हमेशा? Passes through T and N. Osculating plane क्या होता है? Containing T and N is the tangent plane. Okay. ये एक थ्योरम थी। Next theorem. These are important results, so just keep in mind, or by the small calculation you can prove also. If the asymptotic line is not a straight line, अगर straight line नहीं है, then its torsion is, तो जिसका torsion आएगा वो आएगा टाउ स्क्वायर इजिकल टू माइनस के। के यहाँ पे आपका गॉसियन कर्वेचर है, गॉसियन कर्वेचर जो हमने पीछे निकाला था, गॉसियन कर्वेचर, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल लाइन K1 K2, प्रिंसिपल कर्वेचर जो थे K1 K2, उनका प्रोडक्ट जो था दैट वाज गॉसियन कर्वेचर और टोटल कर्वेचर। तो ये हम कंडीशन लेके चलेंगे, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द टॉर्शन निकालेंगे, टॉर्शन जो आएगा उसका ये आएगा सरफेस का। कर्व का टॉर्शन। तो अभी हमने प्रूफ किया बाय थ्योरम 3, we know that for asymptotic lines, for asymptotic line, n dot n is equal to 0, है ना, normal curvature is 0, and also n dot t is also 0, n भी perpendicular n क्या होगा, t के ऑस्कुलेटिंग प्लेन बना रहा था तभी हमने देखा, बोथ 0। तो अगर कोई वेक्टर n प्रिंसिपल n के भी परपेंडिकुलर है, t के परपेंडिकुलर है, तो कैन आई से that this will be equal to plus minus b, b is the binormal, है ना, by the Freinet tetrahedron, you know, Freinet trihedron, t and b, है ना, at every point you have this trihedron, हमेशा एक trihedron बनता है t and b. So if something is perpendicular to n and t, it will be parallel to b, so I can say plus minus b, minus direction के लिए. So this implies that dn over ds
इज इक्वल टू प्लस माइनस dB ओवर ds। डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि हमें टॉर्शन चाहिए। टॉर्शन कब आता है? जब dB ओवर ds आएगा, है ना। वी नो dB over ds derivative of y normal, it is given by tau n। ये आपका फॉर्मूला है, tau n। so this implies that tau square is how much? tau square मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले रहे हैं, तो tau स्क्वायर बन जाएगा ना, tau n डॉट tau n dot n is 1, it's a unit normal, so tau square is equal to how much? dB over ds into dB over ds, है ना। क्योंकि मुझे टाउ स्क्वायर इक्वल टू माइनस के शो करना है, तो टाउ स्क्वायर लिया है। और dB ओवर ds कितना हो जाएगा? बिकॉज प्लस माइनस है, दोनों प्रोडक्ट करेंगे, इट विल बिकम dn ओवर ds। नाउ आई विल शो दैट इट इज माइनस के। देखिए सबने एक प्रॉब्लम शो करी थी, उससे रिकॉल करूंगा। प्रॉब्लम नंबर तो पता नहीं क्या दिया था, प्रॉब्लम हमने करी थी शो भी। देख तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रॉब्लम रूडिक फॉर्मूला से, बाय रूडिक फॉर्मूला, बाय रूड्रिक्स फॉर्मूला हमने लिखा था dn डॉट dn प्लस m dn डॉट dr प्लस k dr डॉट dr इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमने शो किया था। वेयर m इज द मीन कर्वेचर, दिस इज योर मीन कर्वेचर, एंड दिस k इज द गॉसियन कर्वेचर, है ना। ये एक प्रॉब्लम करी थी आपकी, रूडिक फॉर्मूला जहाँ डिराइव करा था उसके जस्ट नेक्स्ट। इससे आई विल शो दिस थिंग। सो सिंस dn डॉट dr इज 0, ये हमें पता है, dn डॉट dr इज 0 फॉर द एसिम्प्टोटिक लाइंस, तो dn ओवर dr ये वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, दिस इज 0। so you have dn dot dn dr over dr, and dr is what? Also dr क्या है? ri dui तो होता है। तो अगर मैं dr डॉट dr की वैल्यू निकालू, यू नो dr डॉट dr, इससे मैं क्या लिखूंगा? ri dui rj duj, rj duj लिखते हैं इसे। और इसको आई कैन राइट ri डॉट rj dui duj, और ri डॉट rj इज हाउ मच? gij dui duj। और ये क्या होता है आपका? ds2, फर्स्ट फंडामेंटल ds2 तो होती है, तो dr डॉट dr इज इक्वल टू ds2। अब वो इसको मैं स्टार लिख दूं क्वेश्चन को भी, तो यू गॉट dr ओवर dr इज इक्वल टू ds2। सो dr डॉट dr इज ds2। so this equation स्टार becomes, स्टार में आपके पास क्या हुआ? बीच का टर्म 0 हो गया, तो यू हैव ओनली dn डॉट dn डॉट dn एंड प्लस k dr डॉट dr, वो कितना आ गया? ds2, ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो k इज हाउ मच? माइनस टाइम dn ओवर ds एंड dn ओवर ds, है ना। ये लिखते थे, स्क्वायर था, ऐसे डिवाइड कर दिया। और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली? dn ओवर ds की टाउ स्क्वायर, ठीक है, दिस टाउ स्क्वायर विच इज माइनस टाउ स्क्वायर, और टाउ स्क्वायर इज माइनस k, वेयर k इज द गॉसियन कर्वेचर। ये हमें प्रूफ करना था एक लाइन में, ठीक है भाई।
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इसमें तो कर रहे हैं। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइजेज, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द asymptotic line on the surface r is equal to r cos theta, r sin theta and log r, log r। सपोज ये एक सरफेस आपको गिवन है, इसका आपका सिम्प्टोटिक लाइन निकालनी है। ठीक है, तो सिम्प्टोटिक लाइन निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, यू नो, आपको सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करके जीरो के इक्वल पुट करना है। तो सेकंड का मतलब बी आई जे आई नीड। तो हेयर इसका मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इजी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन है सिर्फ। यहाँ पर आपके पास अगर देखें u1 जो है वो आपका थीटा है पैरामीटर, एंड u2 जो है वो पैरामीटर r है ना, ये r, थीटा r 2 पैरामीटर। तो यू विल बी फाइंडिंग b11 b12 b22 b21 और उस फॉर्मूले में रखेंगे सेकंड में। तो b11 यू कैन फाइंड, b11 कितना आएगा, r11 डॉट n, है ना, rij डॉट n। n क्या होता है, r1 क्रॉस r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। इट विल बी कमिंग माइनस r अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे, 1 1 करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे सिर्फ। b12 आप इसका कैलकुलेट करेंगे, b12 आ जाएगा 0। b22, 22 मीन्स विद रिस्पेक्ट टू r नाउ, इट विल बी कमिंग 1 अपॉन r अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यूज आप निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड इज इक्वल टू 0। so this implies that b11 du1 square plus twice b12 du1 du2 plus du1 du2 plus b22 du2 square is equal to 0। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल गिव यू कर्व्स। जब आप पुट करेंगे इसमें वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग टू कर्व्स आ जाएंगे। रख के देख लें इस पे, तो यू विल बी गेटिंग टू कर्व्स। इसे सॉल्व करिएगा वैल्यू पुट कर। सेकंड प्रॉब्लम है, फॉर द सर्फेस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसे, सॉल्व इट, पुट द वैल्यू b11 एंड सॉल्व इट। सेकंड प्रॉब्लम है, फॉर द सरफेस f of x y z is equal to c, the asymptotic lines are given by fx dx plus fy dy plus fz dz is equal to 0, and dfx dx plus dfy dy plus dfz dz is equal to 0। ये भी आप कर सकते हैं इजीली। इसका हिंट दे रहा हूँ, एक सरफेस गिवन है, इसके लिए आपको एसिम्प्टोटिक लाइंस शो करनी है, दे आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो वी, इट इज अ इक्वेशन ऑफ सरफेस इन इम्प्लिसिट फॉर्म। तो वी नो TF क्या होता है, DF इज गिवन बाय fx dx plus fy dy plus fz dz, है ना, ये होता है DF इज इक्वल टू 0। क्योंकि f इज इक्वल टू c है तो df इज इक्वल टू 0 होगा, df की वैल्यू ये हो गई। सपोज ये वन इक्वेशन है। ऑल्सो इफ z इज इक्वल टू fxy, ये भी इस सरफेस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय एक्सप्लिसिटली, है ना, इफ वी हैव वन कंडीशन।
then dz can be written as fx dx plus fy dy, है ना। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कोफिशिएंट्स करें fx का कोफिशिएंट, तो fx dx का कोफिशिएंट fx अपॉन fx इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ dy fy अपॉन fy, कोफिशिएंट ऑफ dz इज fz, कोफिशिएंट ऑफ dz हियर -1। तो इससे आपके पास एक रिलेशन निकल के आती है, fx इज, fx कितना हो गया, इधर ले जाएं तो माइनस fx अपॉन fz, स्मॉल f और कैपिटल f, fy इज माइनस fy ओवर fz ना। मैंने पीछे भी किया है तुम इसे, fx fy की वैल्यू निकल आई। नाउ यू हैव, इफ r इज अ फंक्शन ऑफ x y z, है ना, सरफेस की इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज r1, 1 0 fx del z over del x, r2 is 0 1 fy, सेकंड पैरामीटर इज y। तो r1 क्रॉस इसका अगर मैं r1 क्रॉस r2 निकालूं, इट विल बी कमिंग माइनस fx माइनस fy1, और यू कैन राइट, इसकी वैल्यू पुट कर दें, fx की वैल्यू क्या थी, माइनस fx अपॉन fz, fz यू कैन टेक आउटसाइड, so you will be getting fx fy fz, it is the value of r1 cross r2। now you can find your n was r1 cross r2 upon mod of r1 cross r2, ये आपका n होता है, so it will be coming fx fy fz upon under root its square fz square। अब मैं अगर dn निकालूं, क्योंकि आई वांट dn डॉट dr इज इक्वल टू 0 फॉर एसिम्प्टोटिक लाइंस, तो dn विल बी कमिंग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dfx dfy एंड dfz, है ना, कॉमा में dfy dfx कॉमा dfy कॉमा dfz अपॉन अंडर रूट, ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, मॉड रहता है ना ये, ठीक। एंड dr इज हाउ मच, r था x y z, तो dr विल बी dx dy dz। अब पुट कर दें हम dn डॉट dr को 0, तो इससे आपके पास एसिम्प्टोटिक लाइन्स निकल के आ जाएंगी, dn डॉट dr इज इक्वल टू 0 implies that dfx dx plus dfy how much dy plus dfz dz is equal to, ठीक है। तो ये था आपका, ये पर्टिकुलर केस था, एक्चुअली मैंने दूसरी फॉर द सरफेस दिस इज इक्वल टू 0 सॉल्व करा है, द एसिम्प्टोटिक लाइंस इज गिवन दिस, ये आ गई आपके पास, है ना। ये अगर हमने 0 लिया है तब ये उसके लिए सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन इसका, प्रॉब्लम ये थी फॉर द सरफेस शो दैट द एसिम्प्टोटिक लाइंस आर दिस, ये अलग प्रॉब्लम है, सी वाली ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करी है, ये दूसरी प्रॉब्लम, ये आपको यहाँ पे बस 0 पुट करा है, ये थर्ड प्रॉब्लम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर सी है तो आपको ये निकालना है, और ये प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करी है, इट इज द प्रॉब्लम फॉर द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, फाइंड द एसिम्प्टोटिक लाइंस, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है आपका बस, वो है कॉन्जुगेट डायरेक्शंस, तो और मैं जल्दी से बता देता हूँ। कॉन्जुगेट डायरेक्शंस,
definition, given our direction, suppose DUI, एक डायरेक्शन DUI दी है, the direction del UI, different direction ना, is called conjugate, is called conjugate to it if your dn dot del r is equal to 0. okay, dn dot dr is equal to delta r is equal to, इन दो डायरेक्शंस के लिए एक का dn ले, एक का del r ले, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो we say that these directions are conjugate. That means you can say n1 du1 plus n2 du2 dot and del r है तो r1 del u1 plus r2 del u2 is equal to 0. इसको जब आप ओपन करेंगे देखो n1 डॉट r1 आएगा, वो बन जाएगा b11 du1 और डेल्टा u1 है ना, प्लस b12 du1 डेल्टा u2 प्लस du2 डेल्टा u1 प्लस b22 du2 डेल्टा u2 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा. और इसी को आप लिख सकते हैं bij dui डेल्टा uj इज इक्वल टू 0. ठीक, ये इक्वेशन आपकी 13 से लिख लो या ये लिख लो. तो अगर दो डायरेक्शंस के लिए आपके पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म 0 आ रही है, दो डायरेक्शंस के लिए है ना, एक dui एक डेल्टा uj, then we say that directions are conjugate to each other, है ना, and because this relation is symmetric, so I can say if dui is conjugate to delta ui, then delta ui is conjugate to dui. ठीक, एक रिजल्ट है इस पे थ्योरम है. The parametric curves are conjugate if and only if b12 is equal to 0. ठीक, नोट्स में मैंने प्रूव इनकी प्रूव्स करे हुए हैं, नोट्स में कुछ रिजल्ट्स दिए उन्हें पढ़िएगा. ठीक है, इसका प्रूव आप कर सकते हैं. पैरामीट्रिक कर्व्स आर कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ b12 इज 0. क्लास शायद 1 मिनट क्लास कंटिन्यू करेंगे भी बाद में, वैसे लास्ट एक आध टॉपिक ही है बस ये. क्यों भाई स्टूडेंट्स, सबसे स्टूडेंट है बताइए हैं? ये से कंप्लीट कर दीजिए आज ही. ठीक है, तो फिर तो इसे एंड करके नेक्स्ट क्लास में आइए, अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम